जर्नली नहीं है कि हम रोज प्रैक्टिस करते हैं 302 का मुकदमा आया, 307 का मुकदमा आया, यू आस्क फॉर अ कैपिटल पनिशमेंट फ्रॉम द कोर्ट. बट बीइंग दिस केस वेयर यू हैव किल्ड more than thousands of people of particular religion, genocide you have committed, you led a team and made them surrender, killed them on the road, murdered their families, raped their sisters and mothers, and then you ask that capital punishment, death penalty should not be given. वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये प्रैक्टिकली फीजिबल है कि एक ही साथ सारे असेंबलीज के लोकसभा के इलेक्शंस को कराना? 1951 से और 1951 टू आई थिंक 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन चलता रहा. जो कंटेंट क्रिएशन हो रहा है उसमें वल्गैरिटी और अब्यूसिव वर्ड्स का भी यूज़ होता है, तो इसके क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं? कोई भी पोस्ट है जो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, दैट शुड बी विद इन द डोमेन ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. Today we have our guest, Advocate Varun Chugh sir. He is practicing before Supreme Court of India and other various high courts and tribunals. So today we will be discussing various legal issues with him. Welcome sir. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस पॉडकास्ट. लीगल प्रोफेशन में आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई और अभी तक कैसे रही? So I started my career back in 2019, and if you ask me honestly, before 2019, when I was pursuing my law in 2014 to 2019, it was 5 years LLB law program. So from that period of time, I was doing an internship in a local court, that is a lower court. So I had to learn lot of things. I've learned lot of things from going to the lower court. So that's how it started. And in 2019, when I completed my law, I got an opportunity to work with learned Solicitor General Mr. Tushar Mehta ji. Under his guidance, I have worked for 4 years. So this is how it started. And when I was pursuing with my law, so that time I was listening to the late Ram Jethmalani ji. So that time he said that one person should have a experience of the lower court. So that gave me insight and that gave me a fire to start my career, if you ask me, from the lower court, then coming to the Delhi to the Supreme Court, working under learned Solicitor General. ओके, तो सर जैसे आपने बताया कि आपने ट्रायल कोर्ट से स्टार्ट किया एंड आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस हैं बीइंग अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर? So there are a lot of challenges that one has to go through, the first generation lawyer has to go through. And I think that challenges are that nobody is there to tell you what is a law. Exactly. And to guide you in a way that this is the law, this is the right way of filing a petition. See, the thing that we all face is, as a first generation lawyer, is what to file and when to file. That Exactly. is very important. Under what section it has to be filed. What we have learned during our LLB program, that is all about a bookish language that we have gone through. And when I was pursuing my LLB program, that time we had a concept in our university that last 6 months they take us to the physical appearances along with seniors in the trial court. So that really give you a kick that there is a difference between book and physical knowledge that you have to pursue in the court. So in my opinion, that first generation lawyer has to go through all these things. That is, nobody is there to guide you what kind Exactly. of petition, what kind of section you have to use. And the most challenging thing is that the clients nowadays don't trust that you are a first generation lawyer. You might not be able to go or have some legal, you can say, guidance from your father or forefather who had been in this practice. And the third most important thing, according to me, which I have felt, is that the clientage. Exactly. You have been a lawyer, you have gone through 5-year program. Let's say you've been adopted LLM also for 2 years, good 2 years. You've been LLM, you have LLM degree also in your hand, but the client will not trust you with that. They would need some background, that you are from the legal background, your father or your grandfather have been in this profession.
So that clientage doesn't come to you. That clientage doesn't come to you. तो ये जो जितना एक हम बोल सकते हैं कि बहुत कम समय ही रहा, उसमें आपने काफ़ी अच्छा किया। कौन से ऐसे प्रोमिनेंट केसेस रहे जिस पे आपने काम किया और अपने आप को एक कंटेंटमेंट फील हुआ कि हाँ मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया टुवर्ड्स सोसाइटी? तो जैसे मैं आई वॉज टेलिंग यू दैट आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम द लोअर कोर्ट. सो व्हेन वी वर परसुइंग लॉ, मैं लोअर कोर्ट में काम करना शुरू कर दिया था अंडर अ क्रिमिनल लॉयर. तो दैट टाइम आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ रेप केस विद माई सीनियर. तो जब रेप ट्रायल चल रहा था तो दैट टाइम गेट बंद कर दिया उन्होंने. दैट ट्रायल जब उसका चल रहा था, बंद, डोर क्लोज में हुआ. तो तब हमने अपने लॉ बुक में ही पढ़ा था कि जो ये रेप ट्रायल्स हैं वो एक बंद कमरे में होंगे, सो दैट उनकी जो अगर कोई प्रोसिक्यूट्रिक्स है, उसने अगर कोई स्टेटमेंट देनी है, कुछ एग्जामिन करने हैं विटनेसेस, तो शी शुड नॉट फील गिल्टी कि मैं क्या बोल रही हूँ, इतने लोग बैठे हैं. तो दैट वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस जो मैंने देखा कि रेप ट्रायल कैसे एक किया जाता है. तो हम लोग प्रोसिक्यूट्रिक्स की तरफ से थे. तो जब उसका क्रॉस हो रहा था तो आई वॉज ऑल्सो इन साइड. तो मैंने देखा कि कैसे वो होता है. एंड सेकेंडली, कमिंग बैक टू दिल्ली फ्रॉम वेयर ओरिजिनली आई स्टार्टेड माई करियर एज अ लॉयर, नॉट एज अ इंटर्न, वॉज अंडर सॉलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहता जी. तो जब मैं यहाँ आया तो एक्सपीरियंस तो मैंने यहाँ पे बीइंग अ सॉलिसिटर्स ऑफिस, आपके पास काफ़ी हाई प्रोफाइल्ड केसेस होते हैं. तो आई गॉट अपॉर्चुनिटी, सर हैज़ गिवन एज अपॉर्चुनिटी टू वर्क अंडर हिम एंड अंडर दोज केसेस. तो ऐसे काफ़ी केसेस में काम किया है जो नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. मैं इवन मेरे स्टार्टिंग करियर में 2019 में वो मुझे आज भी याद है, वो जजमेंट आ रही थी तब इस पे लैंड एक्विजिशन पे जो 24/2 के ऊपर इन्होंने निकाली. तो तब उसमें भी मेरे को काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली. हाँ ठीक है, मतलब आप एक जब कोई ऑफिस ज्वाइन करते हो, आपका जो एक्सपीरियंस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क मिलता है. तो उसमें काम करने का मौका मिला. फिर निर्भया केस में काम करने का मौका मिला. तो मुझे याद है जब मैं 2012 दैट टाइम मैं स्कूल में था व्हेन दिस हॉरिफाइंग इंसिडेंट हैपेंड इन दिल्ली. तो वी वर आस्क्ड बाय आवर seniors, our teachers, to protest on road against this thing. And that time I came to know the horrifying story that went through, this Nirbhaya went through, the kind of things that she has faced. And 2012 में that time I had a fire कि काश मैं भी advocate होता तो इसका case लड़ पाता. But I didn't know that how destiny plays. So that case came to us when I was in sir's office. So from union side, सर फॉट दैट केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. तो उसमें काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिला, सीखने को मिला. और उसके बाद उसकी कैपिटल पनिशमेंट अप्रूव की सुप्रीम कोर्ट ने. और उनको मुझे आज भी याद है, मॉर्निंग में 4-5 बजे के आसपास हमने ऑर्डर लेकर जेल अथॉरिटीज़ को दिए तो उन्होंने हैंग किया. ओके, आपने जो एंटी सिख राइट्स हुए थे उससे भी रिलेटेड एक केस है, उसमें भी आपने अपना काम किया. अभी जैसे मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, कह लीजिए मेरा सौभाग्य है कि मेरे को हॉरिफाइंग एंटी सिख राइट केस में भी काम करने का मौका मिला. तो जैसे कि मैं पंजाब से हूँ तो मेरी काफ़ी भावनाएं, मतलब आई एम वेरी क्लोज टू दिस केस. तो मेरे को उसमें भी काम करने का मौका मिला है. जैसे हमने अभी 2014 में PAL फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि उसमें भी मैं अभी काम कर रहा हूँ काफ़ी. अभी 2 दिन पहले मैंने रेलवे पुलिस पे RTIs डाली हैं कि कितनी किलिंग्स एंटी सिख राइट्स में रेलवे स्टेशंस पे हुई. काफ़ी हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स हैं, पढ़ के पता लगता है. अभी 2 दिन पहले ही सज्जन कुमार की भी कन्विक्शन हुई, वॉज अ प्राइम अक्यूज इन दिस एंटी सिख राइट्स. तो मैं समझता हूँ कि ये काम करके आपको पता लगता है कि क्या क्या इंसिडेंट, क्या क्या पेन से विक्टिम्स गए हैं, उनकी फैमिलीज गई हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ये जो चेंज है, जो 2 दिन पहले कोर्ट ने कन्विक्शन की, 85 का केस था, 1985 का. तो आज जाके 2025 में उसकी कन्विक्शन हुई आफ्टर 40 ईयर्स जस्टिस प्रिवेल हुआ है. दैट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कमिटीज़ that were appointed by the government then and now
आफ्टर 2014 ऑल्सो SIT वॉज फॉर्म्ड कि जो केसेस को क्लोज कर दिया गया बाय यूजिंग अ पॉलिटिकल वेंडेटा, पॉलिटिकल पावर्स, उन केसों को रीओपन किया गया आफ्टर 2014 और ट्रायल बिगिन किए गए उन केसेस में दोबारा से, री एग्जामिनेशन हुई विटनेसेस की. तो अभी जैसे 2 दिन पहले सज्जन कुमार को हेल्ड किया कि ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ किलिंग 2 people, 2 Sikh people, father and son, whom he have burnt alive. तो he led that mob जिसने उस दोनों को, इनोसेंट सिक्स को बर्न कर दिया लाइव. सो व्हाट हॉरिफाइंग इंसिडेंट्स हैं जिसके बारे में मतलब जब आप पढ़ते हो उनकी टेस्टिमनीज तो आपको पता लगता है कि क्या दे हैव गॉन थ्रू दोज थिंग्स. तो अपने आप से दिल करता है इस केस में काम करने का और उनको जस्टिस दिलवाने का. तो मैंने जैसे एंटी सिख राइट्स केस है उसमें जो PIL फाइल की हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी मुझे अभी सौभाग्य मिला है काम करने का, हेल्प करने का कि कैसे जो विटनेसेस हैं जिनको हम विक्टिम्स के लिए आगे ला सकते हैं सो दैट ट्रायल शुड बिगिन, जो डर गए थे उन ऐसे विक्टिम्स को भी अप्रोच कर रहे हैं, ऐसे भी विटनेसेस को अप्रोच कर रहे हैं कि वो आकर उनके खिलाफ गवाही दें, जो उन्होंने देखा इंसिडेंट का उसके बारे में नरेट करें कोर्ट में आके. सर 1984 में जो सिख राइट्स हुए वो एक ग्रूसम राइट्स हम बोल सकते हैं, एक हॉरिफाइंग इंसिडेंट जो एक मतलब कह सकते हैं कि एक बहुत ही ऐसा इंसिडेंट था जो काफ़ी हॉरिफाइंग रहा, दुर्भाग्यपूर्ण रहा. लेकिन हम जब देखते हैं जस्टिस डिस्पेंसेशन की तो 1984 से आज 2025 हो गए. अभी रिसेंटली सज्जन कुमार को कन्विक्शन हुआ. तो क्यों इतना समय लगा हमें जो विक्टिम्स हैं उनके जस्टिस डिलीवरी में? देखिए क्या है, since I've started working on these cases, so I got to know why it took so much time to get justice from the court. So basically, if trial has to begin, it has to be begin on some forums, that is examination of the witness, that is framing of the charges. When the witnesses are not coming, victims are not coming to the court because of the, you can say, terror created by the Sajjan Kumar and his gang, that they were not letting them to come. And after the intervention of the government, intervention of, you can say, the people of the society, they have started coming to the trials, they have started giving their statements. Just now you have mentioned 2 days back Sajjan Kumar has been convicted under 302 for the offence that he has burned 2 people alive. He was leading a mob that burned 2 people alive, that also Sikh. So in my opinion, this is a genocide. This is not the anti-Sikh rights. This is a genocide on a one religion that was led by him and his gang. So in my opinion, that it took time is because of the terror created by them. But at the end, justice always prevails. Justice has prevailed in this matter, and in future also. This has given them a kick. This has given them a motivation that after 40 years of that also, if you come to the court as a witness, you have seen something, you have evidence available with you, the court can examine it. After examination of those witnesses, those evidence, the court can come to the conclusion. And the court has convicted him, I think on 18th, that is Tuesday, the order will be on sentence by the Rouse Avenue Court on his conviction. What sentence he'll undergo. He is already going life imprisonment in other cases of anti-Sikh rights. In this case also, we are anticipating that he must be punished with the not less than a capital punishment. तो इसमें विक्टिम्स को और जो विटनेसेस थे उनको भी डराया धमकाया गया? बिल्कुल. देखिए, आप इस केस की जो हम बात करें, प्रेजेंट केस सज्जन कुमार की, जिसमें 2 सिख जेंटलमैन फादर और सन को जला दिया, बर्न्ट अलाइव ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली, सरिता विहार. इफ़ यू रीड द FIR डेटेड 1985 की FIR है, इट इज़ हॉरिफाइंग जिस वे से उनको ट्रीट किया गया. ये तो एक इंसिडेंट है विच इज़ इन द लाइमलाइट बिकॉज अभी 2 दिन पहले गया है. देयर लॉट ऑफ इंसिडेंट्स विच आर अनरिपोर्टेड. कई लोग भाग गए, उनको टाइम ही नहीं मिला रिपोर्ट करने का. दैट्स वाई आई स्टार्टेड बाय when you started this podcast, I mentioned that recently I filed this RTIs
इन रेल बिफोर द रेलवे अथॉरिटीज़। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने किया है, क्योंकि हमारी PIL आ रही है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हमने प्रेयर मांगी है सुप्रीम कोर्ट से कि 186 केसेस को री इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि उसमें जस्टिस सही से डिलीवर नहीं हुआ कमेटी। तो उस रिगार्डिंग इफ़ यू रीड अदर केसेस ऑल्सो, दे आर हॉरिफाइंग, एंड आई थिंक ही शुड बी पनिश्ड। इन दिस केस ही शुड बी पनिश्ड विद अ कैपिटल पनिशमेंट। तो क्या मतलब किस नेचर के, अगर थोड़ा सा आप स्पेसिफिक बता पाएँ कि जैसे हम कह रहे हैं कि ट्रायल में ही इतना टाइम लगा, बिकॉज ना तो विटनेसेस रेडी हैं और जो रेडी थे पहले उनको डराया धमकाया जा रहा था। तो इतने ज़्यादा पावरफुल हैं जो एक्यूज हैं कि वो इतना ग्रूसम, जो आप कह रहे हैं कि जेनोसाइड हुआ, उसके बाद वो विक्टिम्स को भी और विटनेसेस को भी डरा रहे हैं। तो क्या क्या मेथड्स ये लोग अडॉप्ट करते हैं? देखिए, अब जैसे इस केस में जो डिफेंस काउंसिल था, उसने एक प्ली रेस की कि आफ्टर पासिंग ऑफ सो मच ईयर्स, तब तक आपने रिकॉग्नाइज नहीं किया, तब आपने अपनी स्टेटमेंट में नहीं कहा, तब आपने सज्जन कुमार को रिकॉग्नाइज नहीं किया। अरे जिसके घर पे, जिसके फादर को, जिसके बेटे को जिंदा जला दिया जाए सड़क पे, और ऐसे कई इंसिडेंट्स जो दिल्ली में ही नहीं टेक प्लेस किए, बाकी भी इंडिया में डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टेट्स में दे हैव टेकन प्लेस। तो उन केसेस में भी तुम समझते हो कि वो रिपोर्टिंग शुड बी देयर व्हेन द पुलिस वर आल्सो नॉट विद यू ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप वो सब कुछ 3 दिन में 4 दिन में कंक्लूड हो जाए? सज्जन कुमार के केस में आपकी डिमांड है कि कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। तो क्या है कैपिटल पनिशमेंट? देखिए, पहले तो कैपिटल पनिशमेंट से पहले समझना है कैपिटल पनिशमेंट मैं मांग क्यों रहा हूँ। क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट जो है ना, द वे दिस इंसिडेंट हैज हैपेंड, टेकन प्लेस, वो बहुत ग्रूसम है। और जो कैपिटल पनिशमेंट है, डेथ पेनल्टी है, वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्टिंग फ्रॉम बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उसमें रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को फॉर्मुलेट किया, फिर उसको फॉलो किया मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, जिसमें प्रिंसिपल्स लेट डाउन की कि दीज आर द पैरामीटर्स जिसमें इन विच रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस फॉल्स, इन दैट केस दैट पेनल्टी शुड बी गिवन। तो मैं समझता हूँ दिस केस falls under those principles framed by Supreme Court, and this case is fit for rarest of rare case and he should be given that penalty. देखिए, जर्नली नहीं है कि हम रोज प्रैक्टिस करते हैं, 302 का मुकदमा आया, 307 का मुकदमा आया, यू आस्क फॉर अ कैपिटल पनिशमेंट फ्रॉम द कोर्ट। बट बीइंग दिस केस वेयर यू हैव किल्ड more than thousands of people of particular religion, genocide you have committed, you led a team and made them surrender, killed them on the road, murdered their families, raped their sisters and mothers, and then you ask that capital punishment, death penalty should not be given. So in my opinion, the court should take a holistic view. I should not be being an officer of the court. I should not be directing the courts how the justice should be given. They are well versed and better than me. But in my opinion, this person and person along with him should be treated as a rarest of rare case and should be given a capital punishment. Otherwise, if he's not been convicted under he's not been sentenced for the capital punishment, I think we should go and appeal again before the High Court for his capital punishment, even though he's given a life imprisonment. अभी हमने देखे कई स्टेट्स में इलेक्शन हुए और आजकल ये भी एक बात चल रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, कि जो इलेक्शंस हैं लोकसभा के और बाकी असेंबलीज़ के, वो सब एक साथ होने चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? अभी रिसेंटली हमने देखे बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन हुए, पिछले ही साल ही लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, और एक बात चल रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। तो क्या है ये 1 नेशन 1 इलेक्शन? तो 1 नेशन 1 इलेक्शन means simultaneous election in all 3 tiers. 3 tiers means पंचायत, state and central. That means सरपंच से लेके लोकसभा MP चुना जाए simultaneously. That means once we are having an election in, let's say, phase 1 in state of Delhi or state of Punjab, so there is an election of councillor
there is an election of MLA, there is an election of Lok Sabha MP. So at simultaneously at the same point of time, you are selecting your mayor, you are selecting your chief minister, you are selecting the prime minister. तो वन नेशन वन इलेक्शन क्या ये प्रैक्टिकली फीजिबल है कि एक ही साथ सारे असेंबलीज के लोकसभा के इलेक्शंस को कराना? देखिए जैसे अभी भी इफ़ यू सी द प्रेजेंट सिचुएशन, नो ऑल्सो द इलेक्शन इज हेल्ड इन 5 to 6 phases. जैसे जनरल इलेक्शंस 6-7 phases में इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं. तो वन नेशन वन इलेक्शन द कंसेप्ट जो है वो भी फेजेस वाइज होगा कि इतने फेज में इतनी स्टेट्स विल गो फॉर द इलेक्शन, इन दिस मच फेज दिस मच स्टेट्स विल गो फॉर द इलेक्शन. तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये तो हमने इसको पॉलिटिकली बना दिया क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट इज इनिशिएटिंग दिस वन नेशन वन इलेक्शन. बट 1951 से और 1951 टू आई थिंक 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन चलता रहा है. हमारे एक ही टाइम पे 1951 टू 1951 दिसंबर और 1952 जनवरी वी हैड अ वन इलेक्शन, साइमल्टेनियस इलेक्शंस हुए. एंड आफ्टर दैट टिल 1967 वी हैड अ वन नेशन वन इलेक्शन. 68 में आई स्टिल रिमेंबर हरियाणा और आई थिंक केरला गवर्नमेंट थी, उसमें वो फॉल हो गई तो डिस्टर्प्ट हो गया ये साइकिल वन नेशन वन इलेक्शन. और 1970 में लोकसभा ही डिसॉल्व होगी तो दिस साइकिल वाज डिस्ट्रप्टिव. तो आई थिंक इट इज़ अ नीड ऑफ अ डे एंड नीड ऑफ आवर दैट वी शुड हैव अ वन नेशन वन इलेक्शन. जैसे आप दिल्ली में आप देखिए अभी इलेक्शंस ख़त्म हुए हैं, उसी से 6 महीने पहले महाराष्ट्र में इलेक्शन से 3 महीने पहले, उसे 3 महीने पहले देश में लोकसभा इलेक्शंस थे, जनरल इलेक्शंस थे. तो अगर सब एक टाइम पे हो जाए तो इट इज़ ऑलवेज बेटर फॉर द कंट्री. क्या प्रॉब्लम्स होती हैं अगर जैसे मान लीजिए इलेक्शंस मोड में ही रहते हैं, तो क्या चैलेंजेस होते हैं कंट्री के सामने? देखिए वन नेशन वन इलेक्शन जो अभी फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी हु इज़ लीडिंग द कमेटी और लॉ कमीशन भी काम कर रहा है दोनों ने, तो उन्होंने कोई चीज़ें कार्व आउट की हैं जो मैं आपके थ्रू योर पॉडकास्ट सिंस यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन आई शुड ब्रिंग इट टू द नोटिस. सो basically they are telling ki what are the benefits of one nation one election. So those benefits are that it is a cost affecting. देखिए आप अभी 3-4 महीने में आप कितनी स्टेट्स इलेक्शंस में चली गई, उससे पहले लोकसभा इलेक्शंस आ गए तो कितनी मशीनरी इलेक्शन में लग जाती है, सिक्योरिटी लग जाती है, CSF लग जाती है, सेंट्रल डिप्लॉयड फोर्सेस लग जाती हैं टू कंडक्ट ए इलेक्शन. इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग. एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करती है तो MCC किक्स इन, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. तो जब MCC किक्स इन फॉर दैट सर्टन पीरियड ऑफ टाइम यू कैनॉट इनॉग्रेट, you cannot launch any scheme, any welfare scheme, any kind of scheme, any inauguration projects, everything is halted. Whatever you have inaugurated way back before that MCC, it is in force, otherwise nothing gets in force. Election Commission take the charge. That is, I'm not against that thing. That is a betterment for the country only, betterment for conducting the elections only, free and fair elections. But somehow it halts the project. It halts the working of the government for which we have selected them. So if we have a one nation, one election, if at one point of time you are having an election of Sarpanch, you are having an election of MLA, you are having an election of Lok Sabha MP, that time if MCC is also in force, it won't affect, because after certain point of time when they are elected or elections are over, the MCC goes away. So in that way, I think it's a cost effective, or lot of leaders, if you see, they are in the campaigning mood only. Exactly. So they have to. सभी के साथ यही होता है जो भी इलेक्शंस में जा रहे हैं. हमने उनको इसलिए नहीं चुना कि आप एक के बाद एक कैंपेन करिए. हमने उसको इसलिए चुना कि हमारी देश की बेटरमेंट के लिए काम करिए. बट दे आर ऑल्सो ड्यूटी बाउंड. एग्जैक्टली. अब सुबह किसी को पार्टी बोलेगी कि आपको यहाँ जाके कैंपेन करना है, इज ड्यूटी बाउंड, उनको जाना है. whether is a central minister, whether is a state minister, whether is a mayor of some city. और कैंपेन करेंगे तभी गवर्नमेंट में आएंगे, तभी काम कर सकते हैं. तभी काम कर सकते हैं. तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जब भी अगर हम देखते हैं इलेक्शंस
होते रहते हैं, मतलब थ्रू आउट द 5 ईयर्स, मतलब ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। तो उसकी वजह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी हार्ट पे आते हैं, और कुछ नई जो चीज़ें होनी होती हैं, बजट नहीं उसके लिए मिल पाता है, तो ये इश्यूज़ तो हैं। वन नेशन वन इलेक्शन ठीक है, अच्छा है, और आपने बताया भी, उसके बेनिफिट्स भी बताए, लेकिन क्या ये लीगली पॉसिबल है ऐसा करना? बिल्कुल लीगली पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है वन नेशन वन इलेक्शन पे, लॉ कमीशन पैरेलली काम किया है उस पर, उन्होंने कई रिकमेंडेशंस दी हैं, और हमने सेंट्रल गवर्नमेंट ने 129th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिल पार्लियामेंट में रखा है, जिस पे डिबेट चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस बिल में आर्टिकल 82A, मैं बिल पढ़ रहा था, 82A इंसर्शन की बात की है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कहेगा साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए, जो कि हम पावर ड्राइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। आफ्टर वी इंसर्ट 82A पास बाय द पार्लियामेंट एंड देन सेंट बाय द प्रेसिडेंट, तो इट बिकम्स अ लॉ। तो उस जब वो 82 इंसर्ट कर दिया साइमल्टेनियस इलेक्शंस के लिए, अब आर्टिकल 83 है जो कि कहता है कि पार्लियामेंट इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन 5 ईयर्स। तो उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी अमेंडमेंट लेके आ रही है बिल में, मैंने पढ़ी। जैसे उसमें एक थी कि मिड टर्म इलेक्शंस हो गए, जैसे 5 साल इलेक्शंस थे, उसमें गवर्नमेंट फॉल कर गई, कुड नॉट कंप्लीट द 5 ईयर्स। मान लो 2.5 ईयर्स में द गवर्नमेंट विल फॉल in let's say 2.5 years, could not complete the 5 years given by the constitution, तो जो remaining 2.5 years होंगे out of 5 years will be completed by the new formed government. That Okay. means वो cycle जो disrupt हुआ था वो टूटना नहीं चाहिए। Okay. अगर आपको 5 साल मिले हैं काम करने के लिए, और 5 साल में आपकी गवर्नमेंट नंबर्स प्रूव नहीं कर पाती, वेदर इन द स्टेट असेंबली और द पार्लियामेंट और इन द हाउस, अपना काउंसलर हाउस में नहीं कर पाती, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में नहीं कर पाती, तो इफ दैट विल फॉल पार्लियामेंट में, अगर वो पूरा नंबर नहीं हो पाता 5 साल के लिए, तो 2.5 साल में अगर आप की गवर्नमेंट गिरती, तो जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो 2.5 साल ही विल बी इन द Okay, पावर, और फिर वो साइकिल फिर से चल जाएगी। साइकिल फिर से चल जाएगा। दैट साइकिल शुड नॉट बी डिस्ट्रप्टिव। जो मैंने आपको बताया कि जैसे 67 68 में साइकिल डिस्ट्रप्ट हो गया था, 70 में लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई थी, तो उसको कर्ब करने के लिए इसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स की हमने 83 में, जो पार्लियामेंट के 5 ईयर्स की टर्म्स की बात करता है, उसमें हमने अमेंडमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की है। देन स्टेट असेंबली में भी आर्टिकल में अमेंडमेंट की इंट्रोड्यूस की है, कि सिमिलरली जो इसमें की हैं उसमें भी, कि मिड टर्म्स इलेक्शंस की। अच्छा, अभी जो होता है, अभी होता है कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, वो आई इलेक्ट होके, और 5 साल से पहले मान लीजिए 2.5 साल में गवर्नमेंट गिर गई, तो फिर जो इलेक्शन होगा तो उसके बाद वो पूरा 5 साल रहती है। बट जो अभी हमारा जो अमेंडमेंट हो रहा है, ये साइमल्टेनियस इलेक्शंस करने के लिए, वन नेशन वन इलेक्शन करने के लिए, तो उसमें जैसे आपने बताया, तो उसके हिसाब से अगर कोई गवर्नमेंट है वो 2.5 साल में गिर गई, तो जो इलेक्शन होगा पर्टिकुलर स्टेट के लिए, मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट गई, तो वो 2.5 साल के लिए ही रहेगी। जी, क्योंकि इससे वो साइकिल डिस्टर्ब नहीं होगा, जो हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो अभी आजकल हमने देखा, आजकल ही नहीं और बहुत पहले से ही फ्रीबीज़ अनाउंस करी जाती हैं, तो फ्रीबीज़ को लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, फ्रीबीज बेसिकली इन जनरल इंग्लिश इट मीन्स द प्रोमिसेस डन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज टू गेट द वोट्स, राइट? बट फ्रीबीज नाउडेज हैज़ एक्सटेंडेड इट्स मीनिंग। पहले क्या था, फ्रीबीज थे सर्वाइवल के लिए, जिसको कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ें जो सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नाउ व्हाट दैट द मीनिंग ऑफ फ्रीबीज हैज़ एक्सटेंडेड बाय द डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब तो कलर टीवी, गोल्ड तक भी इसको एक्सटेंड कर दिया है देने के लिए लोगों को। तो मैं समझता हूँ उसमें कहीं ना कहीं वो नहीं होना चाहिए। फ्रीबीज शुड नॉट बी इन सच अ वे कि इट शुड एक्सटेंड इट्स ओन मीनिंग। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें ठीक नहीं हैं फ्रीबीज। हाँ, जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को करना चाहिए, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। अब जैसे नीति आयोग की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो बिहार में जो लड़कियों को फ्री साइकिल्स बांटे हैं गवर्नमेंट ने, तो दैट हैज़ रिजल्टेड इन अ गुड वे। काफ़ी टर्न आउट हुआ है गर्ल्स का स्कूल आना,
they had a mode of transportation with them given by the government. That is a upliftment of the society. But color TV is not upliftment of the society. Gold is not upliftment of the society. What you need, what is a need of the survival is a upliftment of the society. जैसे आपने फ्री में टॉयलेट्स बना रहे हैं, दैट इज द डायर नीड, वो है अपलिफ्टमेंट. एग्जैक्टली. स्कूल्स बना रहे हैं, वो है अपलिफ्टमेंट. रोड्स बना रहे हैं, वो है अपलिफ्टमेंट. ना कि फ्री में टीवीज बांटना, गोल्ड बांटना. दैट शुड नॉट बी द मीनिंग ऑफ द एम्बिट ऑफ द फ्रीबीज इन माई ओपिनियन. एग्जैक्टली. जो बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं उसको गवर्नमेंट को हर किसी को प्रोवाइड करना चाहिए. तो जो लोग नहीं एफर्ड कर सकते हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, पुअर हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट को ये करना चाहिए. और आपने जैसे बताया कि गवर्नमेंट ने टॉयलेट्स बनाने पे भी ध्यान दिया. तो यहाँ पे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि कई सारी रिपोर्ट्स में बाद में जो आई, टॉयलेट्स जब नहीं थे, ओपन डेफिकेशन होता था. ओपन डेफिकेशन की वजह से भी जो छोटे बच्चे हैं अंडर 5 ईयर एज, उनमें मैल न्यूट्रिशन होता था. क्योंकि मैल न्यूट्रिशन क्यों होता था? बिकॉज डायरिया, वोमिटिंग और ये सारी बीमारियां होती थी. तो ऐसे अगर हम बात करें तो इन बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए इट्स ओके. Yes, it is very important. That is in upliftment of the society. So freebies in that term is very important. But now what the political parties for their own popularity, they have started using taxpayers' money to highlight the freebies by in terms of gifts and all. फ्रीबीज़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट्स का मतलब क्या व्यूज़ रहता है? देखिए, फ्रीबीज का जो इशू है ना, वो बालाजी करके केस था, जो पटिशनर था, जिसने तब तमिलनाडु में जो डीएम के गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट जो फ्री में कलर टीवी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो केस दर्ज किया था. बट उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन ली थी कि दैट इज़ नॉट वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14. देर इज़ अ डिफरेंस इन दैट. तो पटिशनर की प्ली ये थी कि दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, क्योंकि अब कलर टीवी है, एवरीबडी इज़ नॉट एंटाइटल्ड, सो दैट इज़ अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14. तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दैट इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14. और सेकेंडली, it is a domain of legislature to frame the guidelines, and election commission, which is in charge of the conducting the elections, should be come with some frameworks on that. और अभी presently I think PAL फाइल है इसमें ऑलरेडी, अश्विनी कुमार उपाध्याय ने की हुई है, जिसमें they have asked from the court that the taxpayer money should not be used for freebies, gifts and all. I think the court has referred that because वो श्री बालाजी वाला जो केस है, that is by the double bench. तो I think ये इसको 3 bench को रेफर कर दिया है. तो I think we'll wait for the justice. I think court should come on some legal frameworks, some stature, some legal guidance on these freebies. Otherwise, I think the political parties will not stop from giving the freebies by using the taxpayer money. हमने इलेक्शंस की बात करी और हम देखते हैं कि सोशल मीडिया, जिसने लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी, एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं. तो इलेक्शंस को आजकल सोशल मीडिया भी इम्पैक्ट कर रहा है. तो इस पर आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल ठीक है. देखिए, आज ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जो सोशल मीडिया पे नहीं होगी. और आप देखिए, इवन द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑल्सो, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, if you have any problem, you're traveling, let's take an example, you're traveling in a railway, and while being in a railway coach, you face any kind of a problem, you have a railway minister available on your Twitter handle, you can tag him with your problem, and that problems get resolved in 5 minutes, 10 minutes, let's say. So that is a change that is coming up with the social media. I think they become more accountable where they are going, where they are doing something, because they are the leaders of public, and public should know what duties they are performing. So I think social media, as you rightly said, that it is playing a major role in the society, and for the political parties also, they are very leaders also. They've been campaigning with the help of social media for their elections, for their agendas, for their propagandas also, I would say, with the help of social media platform only. लेकिन हम देखते हैं कि सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा कई बार मिसयूज़ भी होते हुए देखते हैं.
हम देखते हैं कि कई सारे कंटेंट क्रिएशन होते हैं, उसमें अब्यूजिव वर्ड्स का भी यूज़ किया जाता है, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? सोशल मीडिया में अब्यूजिव वर्ड्स और लैंग्वेज जो आपने कहा यूज़ की जाती है, देखिए ये आर्टिकल 19 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए जो एम्पावर्ड करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो वो एक फ्रेमवर्क में आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है. वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन शुड नॉट इन्फ्रिंज अदर्स राइट. अगर जैसे मैं अभी आपके पॉडकास्ट में हूँ, अगर मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मेरे को देश के संविधान ने दिया है, तो दैट शुड बी एक्सरसाइज इन अ वे दैट शुड नॉट इन्फ्रिंज योर राइट्स. एग्जैक्टली. अगर मैं आपकी राइट इन्फ्रिंज करने लग पड़ा हूँ, तो दैट आई हैव वायलेटेड माई योर आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए. सो इन दैट वे हम सबको उस फ्रेमवर्क में काम करना चाहिए जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं. तो मैं समझता हूँ कि आई थिंक आजकल सोशल मीडिया में कई चीज़ें ऐसी भी डल जाती हैं जो कि ऑब्सीन हैं, जो कि सेंसिटिव कंटेंट्स हैं, जो कि अफेक्ट करती हैं सोसाइटी को बहुत लार्ज में. तो उसके प्रोज एंड कॉन्स तो हैं सोशल मीडिया के. हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पे कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं और कई बार ये देखने में आता है कि जो कंटेंट क्रिएशन हो रहा है उसमें वल्गैरिटी और अब्यूसिव वर्ड्स का भी यूज़ होता है, तो इसके क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं? जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे आपने बताया, उनकी भी राइट्स हैं. राइट ऑफ क्रिएटिव लिबर्टी है उनके पास. दे हैव अ राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है. बट ऑन द सेम हैंड वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, दैट इट शुड बी इन द रीजनेबल फ्रेमवर्क. अगर आप कोई कंटेंट है जो आप सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, कोई भी पोस्ट है जो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं, दैट शुड बी विद इन द डोमेन ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, दैट शुड बी विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए. एंड आपकी राइट है, आप यू कैन पोस्ट एनीथिंग, बट दैट शुड बी इन द प्रॉपर फ्रेमवर्क. किसी लॉ का वायलेशन ना हो. हाँ, किसी लॉ का वायलेशन ना हो, कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वायलेशन ना हो, संविधान का वायलेशन ना हो, बीएनएस का वायलेशन ना हो और आईटी एक्ट का वायलेशन ना हो. तो उन चीज़ों को ध्यान रख के ही कंटेंट और चीज़ें करनी चाहिए. हमने बात करी लीगल एस्पेक्ट्स की, तो क्या जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं इसको लेके? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेके सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी क्लियर. और जो लॉ है ना, दैट हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. देयर वाज अ हिकलिन टेस्ट वे बैक in 1960s. It was their Hicklin test from which they used to examine whether there is a violation of freedom of speech or expression, obscenity है कि नहीं है. Now what in 2014 they have adopted, the Supreme Court has adopted the standard community test. तो उसके बाद अभी भी just recently I remember 2024 में वो वेरी फेमस सीरीज ऑन OTT प्लेटफॉर्म कॉलेज रोमांस करके एक थी, which was challenged with they said that they are promoting the obscenity. So the Supreme Court came heavily on that thing and said there is a fine line difference between obscenity and promoting their content. There is a fine line between them. तो उसमें भी उन्होंने कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट इवॉल्व किया, बिकॉज कम्युनिटी इज इवॉल्विंग एंड द लॉ ऑल्सो हैज़ टू बी इन्वॉल्व. इट कान बी द सेम एज इट वॉज इन 1850. तो हिकलिन टेस्ट से लेके कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट, इट हैज़ इवॉल्व टू कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट, वेयर एज यू हैव टू सी द पिक्चर एज अ होलिस्टिक व्यू यू हैव टू टेक. हिकलिन टेस्ट में कंजर्वेटिव व्यू था. देयर वॉज अ फोटो ऑफ टेनिस प्लेयर. हिकलिन टेस्ट में एक फोटो थी, एक केस था कि देयर वॉज अ फोटो ऑफ अ टेनिस प्लेयर, न्यू टेनिस प्लेयर. सो द कोर्ट upheld the Hicklin test and said that falls under the Hicklin test and that is a violation of freedom of speech and expression, that amounts to obscenity. But now what the court has taken, Supreme Court has taken a community standard test. अभी हमने रिसेंटली देखा कि कुछ कॉमेडियंस हैं जिन्होंने अपने शो पे वल्गैरिटी यूज़ करी, अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करे, तो उनको क्या पनिशमेंट हो सकती है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि आपके पास राइट है क्रिएटिव लिबर्टी की, तो वो राइट ऑफ क्रिएटिव लिबर्टी शुड बी इन द प्रॉपर फ्रेमवर्क, शुड नॉट वायलेट. तो उनको सेक्शन 294 BNS एक्ट के अंदर भी चार्ज किया जा सकता है, IT एक्ट के अंदर भी किया जा सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर.
तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के अंडर उनको कॉन्विक्ट किया जा सकता है अगर दे आर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ दैट ऑफेंस विच दे आर एलेजिंग. और ऑन अदर हैंड अभी मैं देख रहा था मॉर्निंग में, दिस मॉर्निंग आई वाज चेकिंग माय सोशल मीडिया अकाउंट, तो आई हैव सीन दैट the people, the comedians who were present on that show at that point of time, who were part of that alleged, you can say, vulgarity or obscenity, so they are also being given a threat, death threats, rape threats to the women who was present there. So in my opinion, the society and should maintain the balance between freedom of speech and expression and violation of freedom of speech and expression. हम सोशल मीडिया में देखते हैं कई बार लोग, ठीक है, सोशल मीडिया ने सभी को एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर वो अपनी बात रख सकते हैं. अगर कुछ कंटेंट क्रिएशन करना है तो वो कर सकते हैं. बट हम साथ में ये भी देखते हैं कि सोशल मीडिया में ही ऐसे भी कंटेंट आते हैं जिसमें अब्यूजिव वर्ड्स और वल्गैरिटी यूज़ होती है. तो इसके क्या लीगल एस्पेक्ट हैं? देखिए, इसका जैसे कि संविधान हमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है. तो कंटेंट क्रिएटर्स को भी राइट्स ऑफ क्रिएटिव लिबर्टी देता है. बट दैट राइट शुड बी एक्सरसाइज इन अ प्रॉपर framework. It should not violate or infringe others' right. So that would amount to violation of Article 19 Clause 1 Subclause A of the Indian Constitution. तो मैं समझता हूँ कि कंटेंट क्रिएटर्स के बारे भी राइट है और उसको ऐसे एक्सरसाइज करना चाहिए कि वो वायलेशन में ना हो, स्टैंडर्ड कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स में हो. जैसे कि पहले ज़माने में इन 1960s, इफ वी टॉक अबाउट 1960s, तब हिकलिन टेस्ट हुआ करता था विच यूज टू टेस्ट द ऑब्ससेनिटी एंड वल्गर लैंग्वेज. बड़ा कंजर्वेटिव था एट दिस पॉइंट. इफ वी कंसिडर दैट टाइम इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट टेस्ट, बट नाउ इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ओल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट. अब सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट अपहेल्ड कर दिया. और अभी भी रिसेंटली 2024 में बड़ी फेमस एक OTT प्लेटफॉर्म में कॉलेज रोमांस करके एक शो है which was challenged and which came till Supreme Court. So Supreme Court passed an order saying that there is a fine line between obscenity and the foul language. So that difference they have also upheld the community standard test. That means holistic view लिया. यही नहीं कि अगर एक कुछ बोल दिया तो that is a your violation of freedom of speech and expression. तो आपकी right भी है, as I said, right of creative लिबर्टी भी है आपकी. तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट. और जैसे कि अभी आप जिन बात कर रहे हैं जिस शो की, उसमें देयर आर सर्टन सेक्शंस फ्रॉम डिफरेंट एक्ट्स विच दे कैन बी, इफ दे फाउंड टू बी guilty of those offenses, they can be convicted under those sections of BNS, Information Technology Act. तो उसमें तो लॉ अपना एक रिकोर्स लेगा ही. और मैं समझता हूँ किसी का भी हक नहीं है कि किसी की भी लॉ को अपने हाथ में लेना. जैसे दिस मॉर्निंग आई वॉज गोइंग थ्रू माई सोशल मीडिया अकाउंट, आई केम अक्रॉस द थिंग दैट द कॉमेडियंस हु वर प्रेजेंट ऑन दैट शो आर गेटिंग death threats they are getting. There was a girl who was present at that show, she is getting rape threats. So it shouldn't be like that, both ways. I'm not favoring them what they did, and I'm not favoring what the in response to that some of the miscreants are doing. So both should be balanced out, and all of them have their freedom of speech and expression, and law and there is a legal force, there is a there are courts which take place. So let them do their work, let them examine whether they are guilty under so and so sections or not. So we should not take law in our hand. I think this exactly. अगर किसी ने कुछ गलत भी किया है तो कोर्ट्स डिसाइड करेंगे कि क्या है, क्या पनिशमेंट होनी चाहिए. लोगों को मतलब अपने हाथ में कानून लेने का अधिकार नहीं, बिल्कुल नहीं. हम देख रहे हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कोर्ट्स भी हमारे उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं. और लाइव स्ट्रीमिंग और वर्चुअल कोर्ट्स जो है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग उसका एग्जाम्पल है. तो इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा जस्टिस डिस्पेंसेशन पे? देखिए, मैं समझता हूँ इट इज़ प्लेइंग अ वेरी
vital role in society. I'll tell you how. Just now, yesterday only, I think Thursday, there was a constitutional bench discussing on arbitration, Article 30 or Section 34 and 37 of the Arbitration Act. उस पर डिस्कशन था that whether the courts have power to modify the award or not. तो उस पर 5 bench constitution constitute किया गया by the Supreme Court. तो मैं समझता हूँ उसकी लाइव स्ट्रीमिंग, नॉट ओनली ऑफ दैट, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की लाइव स्ट्रीमिंग बाय द सुप्रीम कोर्ट इज़ अ वेरी 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 वेलकमिंग स्टेप back then. And now also it is really helping people. See, the citizen of this country should know what is going before the Supreme Court. That's the highest court of this country. Being the apex court of this country, the citizen are entitled to have a right to know what the constitutional bench is saying, because ultimately whatever is coming from the constitutional bench, what judgment is coming from the constitutional bench is going to help the citizen of this country. So they should know what is going before the court of this country. And coming to the second question of the virtual hearing you have asked, so that has really helped the lawyers like me to appear to different courts, to different high courts while sitting in Delhi, and to appear before the, you can say, the smallest court in Chennai also through the virtual link. So I think that is a very, you can say, helpful practice that is going in our courts. But there is a need, I must say, there is a need of upliftment of the virtual hearing in the lower courts. The systems and all have to be upgraded. See, now we practice before Supreme Court and High Court. In Delhi High Court, there is a proper system of virtual hearing. In Supreme Court is well equipped to have a virtual hearing. Even the transcripts are also there in Supreme Court, the system we have. So I think the same way it should, the lower court should also be upgraded. Tribunals, there are a lot of tribunals that should be upgraded with a virtual hearing. There are a lot of tribunals that we can appear through virtual hearing, but the systems are not that much upgraded that they are easily accessible. So I think that this is a good step towards, when the technology is there, you should opt for it. Now they have introduced AI also systems in Supreme Court. So I think that is a modern era. The court should also be part of that modern era. आपने कुछ प्रो बोनो केसेस भी किए हैं, तो कौन से वो केसेस हैं जो मतलब आप प्रो बोनो करते हैं? देखिए, मैं जो केसेस में मुझे लगता है कि पार्टीज जो आई हैं मेरे पास, दे आर, पहली बात तो मैं कोशिश करता हूँ कि आई ट्राई टू गेट इट सेटल्ड ऑन माई टेबल इट सेल्फ. इफ बोथ द पार्टीज आर बिफोर मी, or if there is a matrimonial dispute, I tell my clients to get it settled than to fight in the court. And secondly, if really they want to fight, recently last month I got a bail was granted by the High Court in a murder case. So we filed a cancellation of bail before the Supreme Court. We filed a SLP. So I argued that matter. I did that pro bono, that mother and son came to me. Their real brother, the applicant's real brother was murdered on the street. So they were not well off from the family. They came to me, they approached, and then I did their case, and with God's grace, justice was delivered. So the bail was cancelled and they were given a justice. यंग लॉयर्स के लिए क्या एडवाइस है आपकी? देखिए, मैं तो जिस एडवाइस पे मेरे फर्स्ट मेंटोर ने, जिसने मेरे गुरु तुषार मेहता जी से जो मैं सीखा हूँ, वो है दैट यू हैव टू बी वेरी हार्ड वर्किंग इन दिस प्रोफेशन. सेकेंड इज़ यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट. थर्ड इज़ you have to be very disciplined. This profession only needs 3 things, and the fourth one is your honesty. So once you have all these 4 things imbibed in yourself, you will be the successful lawyer. If the person who is coming from no legal background, no sport, can be the solicitor general of this country with his hard work, consistency and honesty. So anybody in this country from first generation,
first generation, no backup, no background can also achieve that position. So it is my advice to all young lawyers that this profession needs time. So don't be patient, donate your time. It will pay back to you once you have achieved the timeline, once you are disciplined, once you are consistent towards your matters, towards your law. It will always pay you back. Thank you, sir. Thank you for joining Thank you us. so much for having me. Thank you.